So as the question says, a man pointing to a lady said, the son of her only brother is the brother of my wife. The lady is related to the man as dash. Now, here, because we have been given a sentence describing a relation, so go from last point, trace back methodology, जिसमें let us first try to see what is he asking. Now, brother of my wife, अगर हम हिंदी में कहें तो साला हो गया, right? Brother of my wife. Son of her only brother, मतलब lady का भाई is the son of her only brother. Son of her only, उस lady के भाई का बेटा is equal to brother of man's wife. So let's understand this easier way by drawing a diagram. ऐसा क्यों लग रहा है कि diagram draw करना पड़ेगा? What's the situation? Just a minute. आवाज़ें आ रही है. So here we have been given a situation which is describing two different cases. Usual context में आपको एक ही scene बताया जाता है, but यहाँ पे men भी involved है and there's a lady also involved. So let's see how it is. First, let us try to draw what we have been given. Here it is saying brother of my wife. So in the previous class we had seen, just a minute, eraser. Yes. So जैसे हमने एक अंडरस्टैंडिंग बैठाई थी, इक्वल टू is for wife and husband relation, and double arrow is for brother sister relation, जिसमें से plus minus. So to denote a plus, to denote a male person, we had said plus, and to denote a female, we had said minus. And here it is once again plus. Now we have said कि this is a men. Okay, so let me point it out with M. भाई का brother, भाई के wife का, so here he's saying brother of my wife. So he is this person. Is son of her only brother. Now who is this her? Lady. So here he's saying son. So as we know, जब भी hierarchy आती है एक के बाद एक, so son of her, तो जिसका भी है. Now you see यहाँ पे mention किया गया है son of her only brother. किसका? लेडी का भाई. तो ये जो भी है ये उस लेडी का भाई है. So let me just draw the lady as well, and then उसका फिर husband भी होगा, right? Then there'll be another husband as well. One second, let me erase this part. And so see कितने easily हम diagram draw भी कर पाते हैं फिर जैसे ही समझ आता है कि कहाँ क्या ले जाना है. So this is the brother sister relation, right? This is a brother sister relation, and we have been told he is a male, son of her only brother. She's a female, and here we have a male candidate. And who is this? She's a lady. Now you are being asked, what is this relation? कौन सा है? ये वाला relation दिखा दो. ये relation क्या है? What is this relation? उस lady का उस आदमी से क्या relation है? Now check. What are we given the options? First of all, आप देख ही पा रहे होंगे. The lady is related to the man as father side से, है ना? Sister-in-law. Sister of father-in-law. Sister of father-in-law कौन है? ये father-in-law हो गए. ये father-in-law हो गए.
और ये उसकी सिस्टर हो गई फादर इन लॉ की. सो इट इज शी इज अ सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ. नाउ अब आपका जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं साक्षी जी. यस, क्लैरिफाई. मैम यहाँ तक क्लियर हुआ था कि मैन है, उसकी वाइफ है, ठीक है, जो आपने नीचे ड्रॉ करा. एंड ब्रदर, उसका ब्रदर हो गया. सेकंड भी क्लियर हो गया कि उसका सन है, ब्रदर का सन. ये हो गया. फिर जो मैम आगे का ड्रॉ करा हमने, वापस से फिर लेडी और फिर हस्बैंड क्यों ड्रॉ करा है ये? देखिए, आप यहाँ तक पहुंच गए थे, दिस पार्ट तक. यस मैम. क्लियर है. Now who is he? He is mentioned on her only brother. Now see, this person, ये जो B लिखा हुआ है, this person is the son of her only brother. Son of her only brother. इसका इसीलिए तो आप son है, इसलिए तो आपने यहाँ तक पहुंचे या नहीं पहुंचे? पहुंच गए. Now you are being told her only brother. Now who is this her? Lady, right? So we'll have to draw a lady then. ब्रदर सिस्टर रिलेशन करते एक लेडी को यहाँ पे ड्रॉ करना ही पड़ेगा, isn't it? और then and then once you have a lady you'll have another his husband or you may not have, it doesn't matter. but यहाँ पे आपको जो रिलेशन बताया है, ये वाला इंसान, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, how is this person related to him, this man? वाइफ के साइड से, पत्नी के साइड से, सो इन लॉज के साइड से. और इन लॉज में भी आप यहाँ तक पहुंच गए, बट हु इज शी, हु इज दिस पर्सन? वो सिस्टर है, इन लॉज की सिस्टर है. दैट्स व्हाई. इसको एक बार फिर से मंथन कीजिए, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड. यस मैम, गॉट इट. क्लियर हुआ. मैम यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होता है ना कि जैसे हमने आधा ड्रॉ कर लिया, फिर आगे जाके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा था कि किसका ब्रदर है, किसका सन है, कहाँ से ड्रॉ करना है. ये थोड़ा सा से आपका फर्म हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेस बैक मेथोडोलॉजी एंड डायग्राम दोनों ड्रॉ करने पड़े आपको, फैमिली ट्री भी. मैम थोड़ी सी और ट्रिक बता दीजिए, जैसे कभी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में ट्राई. दोनों ट्रिक्स मैंने पहले भी बताई थी. एक है अपना ट्रेस बैक और दूसरा है फैमिली ट्री ड्रॉ करना. ये भी ही यूज हुआ है. इट्स जस्ट दैट एप्लीकेशन. एक ही चीज को आपको जैसे पुरानी बोतल में नई दारू डालना, तो यहाँ पे वही चीज हुई. we have there are different miscellaneous examples which can help you understand it more better, जो आपको number of books में मिल जाएंगे. तो जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपका वो कंटेंट पुख्ता हो जाएगा. बस that's it. टेक्निक्स तो वही है, पुरानी ही है, बस आपको वो अप्लाई करना आना चाहिए. वो आ जाएगा. थैंक यू मैम. ये इसके मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस, तो अगर कोई भी इशू हो तो ग्रुप में पॉसिबल है ना डालना? आप डाल सकते हो, बट मैं इसकी गारंटी नहीं दूंगी कि मैं हर बार आके सॉल्व करूंगी. मे बी वी कैन हेल्प इट इन द फॉर्म की स्टूडेंट्स भी अपने आप में इनिशिएट करे एंड दे मे सॉल्व इट. ओके ओके. आप बिल्कुल बेझिझक डाल लो, नो प्रॉब्लम. बट उससे पहले आप डाल सकती हैं, ठीक है ना. कोई ना कोई 3-4 टीचर हैं ग्रुप में, तो कोई ना कोई बता देगा. मैम उससे ये भी हो रहा है ना थोड़ा सा कि हम लोग का अटेंशन भी हो रहा है सबका, और क्वेश्चंस मिल रहे हैं. आप डालिए, बिल्कुल डालिए, और स्टूडेंट्स भी सॉल्व कर सकते हैं. फिर नहीं होगा तो फिर है ही टीचर्स. बाकी मेन पर्पस तो यही है कि आप प्रैक्टिस लगातार बनाए रखें, ताकि वो जो डर है वो निकल जाए एग्जाम का या फिर जो क्वेश्चन का. क्योंकि कभी कभार ब्लड रिलेशंस बड़े ट्रिकी लगते हैं बहुत जनों को, तो वो ट्रिकीनेस या फिर वो टफ, वो जो एक डायलेमा बना है वो निकलेगा तभी जब हम उसको सॉल्व करेंगे और उससे डर पर काबू पाएंगे. राइट. सो ओके, आई हैव टेकन इनफ ऑफ. मैम हेलो मैम. मैम जो यस्टरडे की क्लासेस होती हैं वो ना शो नहीं होती हैं. वो तभी शो होती हैं जब आप उसका लिंक भेजते हैं. उससे पहले हम कितना भी चेक करते हैं ना, वो शो नहीं होती हैं. क्योंकि वो अनलिस्टेड होती है. सारे ही अपने YouTube पे नहीं होते हैं, कुछ होते हैं. तो वो मैं आपको जब मैंने बताया ना गूगल क्लासरूम, उस गूगल क्लासरूम में आपको मिल जाएंगे. यस मैम, मैं गूगल क्लासरूम की ही बात कर रही हूँ. मैं उसे चेक करती हूँ, उसमें शो नहीं होता है.